इस दो पिस्टन वाली बाइक की कहानी कुछ अनोखी सी है, समथिंग डिफरेंट। वेल, द स्टोरी गोज समथिंग लाइक दिस। जब रॉयल एनफील्ड में यह इंजन बन के तैयार हुआ तब बहुत सारी खुशियां मनाई गई। कुछ दिन बाद जब ये इंजन प्रेस को दिखाया गया, प्रेस बहुत खुश हुई एंड एवरीबडी काइंड ऑफ अप्रिशिएटेड इट अ लॉट और बहुत सारी खुशियां मनाई गई। 2018 में जब इस इंजन के साथ दो मॉडल्स इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल लॉन्च हुए तो सबने मिलके बहुत खुशियां मनाई। इनफैक्ट खुशियां मनाते मनाते अब हम 2021 में आ गए हैं, जहां पे इंटरसेप्टर को देख के कुछ ऐसा अनोखा फीलिंग आता नहीं है। उसका रीज़न है, देखिए, इन 2021 the only change that they could give us was a headlight glass, a BS6 compliant engine because government mandate was there, tires because import नहीं हो सकते थे, और नए कलर्स, ये तो स्प्लेंडर में भी आते हैं। And the time like this where every other year we have a new iPhone or a new Samsung available to us with greatest and best of technologies in the market, Interceptor feels like a neglected child of Royal Enfield. Well, इस neglect से मुझे थोड़ा सा फ़ायदा है, because since 2019 when I bought this bike, I had been upgrading it as per my liking. और क्योंकि 2021 में ये changes कुछ ज़्यादा नहीं थे बाइक में, मेरे mods आज भी relevant हैं। तो इसको complaining video नहीं बनाएंगे, rather we will discuss all the mods that I've done in this bike and we'll see how they have and have not helped me in going further on this bike. But before that, please like, share, subscribe the channel, comment करना और घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलना, और मोटिवेशन देते रहिए देते रहिए देते रहिए, because that helps a lot. It keeps us going on and on and on. And these videos take time and effort. In this particular time where you have to find such locations to shoot, it's kind of difficult. So please like, share and subscribe and enjoy the content. आगे बढ़ते हैं। Any motorcycle is much more than an engine. और हर बाइक में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, अच्छा हो सकता था, और इसकी भी वही कहानी है। But in the due course of this ownership that I've had with this bike, I have modded it as per needs and preferences. ये कुछ relevant रहेंगे, कुछ personal favorites रहेंगे। So आइए देखते हैं। See, this is an original accessory bought from Royal Enfield. एंड शोरूम से निकलते समय ही मैंने ये इंस्टॉल करवा लिया था, एज आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी. You must get it installed. If not this, any leg guard should work. Ideally, a Zana leg guard would work better on this bike because A, ये बहुत हैवी है, B, गिरने के बाद एक ऐसे एंगल पे गिर जाती है कि उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सो जितनी बार भी ये गिरी है, आई हैव नॉट बीन एबल टू पिक इट अप माई सेल्फ. मैंने हमेशा एक मदद लेके इसको उठाया है, और थोड़ा सा दिक्कत होता है बिकॉज दिस लेग गार्ड स्लाइटली फॉल्स शॉर्ट of protecting it. It does the job okay, but the Zana one comes out a bit and I think that works better. No, Zana is not paying me anything, but it does work better. इसका प्राइस और Zana का प्राइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना. Tires was the first thing that I changed in this bike after rolling out of the showroom. See, what the problem was that I faced is while on straight speeds, I mean straight line highways and even on turns, the bike was extremely wobbly and very unconfident. That was, at least to me, was very very scary. I upgraded the rear tire to 140 and let the front tire remain the same as 100. इससे दो फायदे हुए हैं. एक तो बेंड्स पे बहुत ज़्यादा स्टेबल है. स्ट्रेट लाइन स्पीड has stabilized way better than what it was in the original Pirelli Sport Comps.
देखिए even in 2021 Royal Enfield did not change it. While Meteor got a 140 segment tire, Interceptor remained the same at 130. And I truly think that this bike can do better with a 150 segment tire as well. People on the internet and have shared some images wherein 150 segment का tire use किया गया है, and I have seen and I have heard that it's much more stable than what comes stock in this bike. दूसरी टायर रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि 18 इंची के टायर में अवेलेबिलिटी इज़ ऑलमोस्ट लिमिटेड टू 3 और 4 सेट ऑफ टायर्स, और इम्पोर्ट बैन के बाद तो वो भी आना बंद हो गया है. तो अभी टायर्स ऑफ 18 इंचेस आर सो वेरी हार्ड टू प्रोक्योर. इवन दिस टायर इन 2019 was a tough deal to crack. I in fact had to call Pirelli India and figure out who is the vendor for them and then procure this tire from their vendor. These are not normal sizes. They could have just gone with a 17 inches tire and that could have opened up a new segment of options altogether for all of us. And I think it would have also lowered the center of gravity for better handling. But that's just my take. They must have thought that an 18 inches tire would be better on such a bike, but I think I would have liked more options. You might see the headlight is also changed because one of the issues that I found on this bike was the headlight was not up to the mark. सी कैंडल लाइट डिनर के लिए तो अच्छी थी, पर रोड पे चलाने के लिए ऐसा लगता था कि भगवान का नाम लो और आगे बढ़ते चलो. बिकॉज ट्रस्ट मी, आफ्टर द वाइजर एंड कपल ऑफ लाइट्स हैंगिंग इन फ्रंट ऑफ द मोटरसाइकिल, यू कुड barely नोटिस द रोड. सो आई अपग्रेडेड इट टू दिस लाइट. ये मैंने करोल बाग में रॉयल बुलेट एक्सेसरीज करके, कमल आनंद की शॉप है, बहुत फेमस है वो इंटरनेट पे, उनसे चेंज कराया था फॉर 2300 रुपीज़. इट्स वर्क जस्ट फाइन. आई रियली लाइक दिस आर्क टाइप डिज़ाइन ऑन द साइड and I have kept it since then. This is of 90 watt. This is enough light, but I think for highways you might require more because the bike can churn up better speeds and higher speeds without letting you know, because vibrations are pretty minimal. As you can see, this is a 9 LED fog light. इससे पहले I had a HJC which is a aluminium housing with a ballast sort of a fog light, which was mounted in a similar way right on top, and I had bought it for 2500 something from Kamal Anand Royal Bullet, and it lasted just 3 days and then it stopped working. It had a dual color LED which could be turned on to white as well as a yellow amber color. I thought it would work better on the highways, but much to my surprise ऐसा कोई cataclysmic change था नहीं. And since they got bad in just 3 days, and he also refused to change them because they are not under warranty once installed, so I had to go back to my old companion mechanic who's been helping me who's been helping me for the longest while now, and Golu, as you all know. Golu asked me a very simple question. भैया आपको क्या करना है, आपको शोशा करना है या आपको लाइट चाहिए? मैंने कहा यार लाइट चाहिए. He took me to Gujral Auto. Uncle over there suggested that I should go for this 9 cell LED. This is for 575 a pair. I don't know the current prices, maybe 600 रुपये हो गया होगा. And this illuminates way better than that aluminium housed fancy looking LED which was running on single LED unit, whereas this has 9 cells, and I can see the difference. I've been riding it in the night, as I told you earlier. It works phenomenally better for me. So showroom से निकलते ही मैंने ये वाइज़र, स्टैंडर्ड वाइज़र लगवा लिया था जो रॉयल एनफील्ड सप्लाई करती है. एंड वाइज़र डलवाने के बाद ऐसा लगता था जैसे वो एयर ब्रेक है, और मुझे लुक और ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत अच्छी लगी नहीं थी. सो देन आई ऑर्डर्ड दिस सेटअप फ्रॉम अली एक्सप्रेस, जो यूनिवर्सल फिटिंग 7 इंच काउल था फॉर अ 7 इंच 8 इंच सॉर्ट ऑफ अ हेडलाइट.
It still has some gap which I filled in with this beading. It took us about 2 hours to make the housing fitting for this cowl cover, and in the end I kind of like the look of it. और मैंने रख लिया ये, मुझे उस वाले वाइज़र से बेटर लगा और उस वाले वाइज़र से थोड़ा सा एरोडायनेमिकली भी सॉर्टेड था. सो येस, इट स्टेड ऑन द बाइक. अब आ जाते हैं ये स्विचर पे. The switcher doesn't come in with this headlight on and off switch. Headlight is always on because government mandates. So I got this change. This is an original Minda unit which I got for 500 rupees, and I changed the housing and everything and just added an on-off switch. The DRL of my lights remain on all the time. So if safety is your concern, then that is also taken care of by this. The other change that I did was this unit. Basically what this unit is it houses 3-4 things. It has my battery meter in it, then it has a cigarette lighter socket through which my air pressure controller works. It has 2 USB charging sockets wherein अगर यहाँ पर टैंक बैग रखा हुआ है तो मेरा फ़ोन, GoPro और any other thing that you want to charge on a trip, that can be taken care of, and it works very nicely and comes in handy in tight situations. To be honest, कभी कभार घर पे भी जैसे टायर डिफ्लेट हुआ है या कभी एक बारी वॉल्व ख़राब हो गया था टायर का, तो थिंग केम इन हैंडी. मैंने जल्दी से अपना टायर इन्फ्लेटर लगाया और टायर इन्फ्लेट कर लिया था. It just worked like a magic. So mostly all of my bikes have had this or something like this on it. This one also has a digital clock which now doesn't function properly. It is showing 3 o'clock right now, whereas it is 7. So this is the other mod. I got this from AliExpress for I think 1200-1300 rupees, but now this is also available on Amazon. I last checked. So पूरी बाइक में सबसे कम ध्यान दिया गया है इसके टायर्स और व्हील्स पे, जो मैं अपनी पहली 4 वीडियोस में बोल चुका हूँ. Similarly, this huge bike came with spoke wheels in a time where spoke wheels are available in tubeless setup as well, and in a time where Bonneville comes with alloys because it is catering to a certain audience which doesn't want to have puncture issues with their premium bike. And this was Royal Enfield's premium unit, you know, top of the line. At least when I picked it up. अभी चेंज हो जाए तो पता नहीं. तो मुझे लगता है कि इंजन बनाने के बाद आई थिंक पूरी बाइक was a hurry up job. To be honest, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं है. व्हील्स एक उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है. These are spoke wheels wherein a company like Royal Enfield which sells in fucking numbers, big numbers, could have given you a state of the art option of tubeless spoke wheels if they really wanted to go on with that retro feel. They did not even provide it as an accessory. वैसा भी तो हो सकता था कि एक नॉर्मल यूनिट लॉन्च करते हैं और बोलते हैं कि ये ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स हैं, ये एक्सेसरी में आएंगे, या ये एलॉयज हैं 4 डिफरेंट कलर्स में, ये आपको एज एन एक्स्ट्रा ख़रीदने पड़ेंगे. मुझे आप बताइए, क्या आप ख़रीद नहीं लेते? मैं ख़रीद लेता. बिकॉज टू मी देर इज़ नथिंग ग्रेटर ऑफ एन एम्बेरसमेंट टू हैव अ पंचर. एक तो एक बाइक खींचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है. ऐसा नहीं है पंचर होने के बाद आप इसे खींच लोगे. तो हाँ, तो मैंने ये पंचर के डर से और व्हाटएवर, आई हैड अ कपल ऑफ पंचर्स, इनफैक्ट 4. आई चेंज दीज 2 एलॉयज. ये एलॉयज भी मैंने कमल आनंद की दुकान से डलवाए थे, विच इज़ इन करोल बाग, रॉयल बुलेट. वो एलॉयज की वीडियो मैंने अलग से डाली है. हाँ, एंड देन आई वेंट बैक टू दैट ट्यूबलेस सेटअप. एलॉयज वर फॉर 7,500 rupees, but when I changed my
bikes set up to tubeless, which is that inverted tube video that I had made earlier. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. उसी सेटअप पे ये दोनों टायर्स अब डले हुए हैं और ये दोनों अब ट्यूबलेस हैं. अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक सीम होगी. दिस इज़ द ट्यूब दैट आई हैव इंसर्टेड, which is becoming like a barrier for these spokes and the tire to hold the air inside, and so far it's been working nicely. I think Royal Enfield should give us an option of either getting it tubeless or something. I don't know. It could have been better tested, and coming from a brand, it could have had a credible product, sort of a credibility. तो आप लोग आराम से यूज़ भी कर पाते. तो हाँ, Royal Enfield lacks there. Whereas अगर आप देखें तो मीटियोर में वो सब चीज़ें थी. 140 का टायर दिया गया और एलॉयज भी दिए गए, विच आई थिंक मेक्स मी थिंक दैट फिर दोबारा इस बाइक को नेग्लेक्ट कर दिया गया है. अभी आप लोग ध्यान दें तो आप देखेंगे कि मैंने सीट चेंज करा ली है. ये एक्चुअली बहुत पहले ही चेंज करा ली थी, बट ध्यान से अगर आप देखें तो मेरे को क्या इशू था और मैंने क्यों चेंज करी ये मैं आपको बता देता हूँ. जब मैंने बाइक ली, इट हैड दैट स्ट्रेट नॉन इंडेंटेड सीट. ऐसा कोई क्या कहते हैं, ऐसा स्टेप अप सीट नहीं था. तो स्टेप अप सीट करने का क्या मोटिव था मेरा? तो देखिए, एक तो मुझे बहुत सारे वीव्स और बहुत सारे डिज़ाइंस पसंद आते नहीं, तो मैंने बहुत प्लेन सीट रखी है. दूसरा, जब आप एक्सेलरेट करते थे ना सीधी वाली सीट पे, तो ऐसा लगता था जैसे आप पीछे जा रहे हैं. देयर वाज नथिंग टू होल्ड और ग्रिप ऑन टू. इवन कॉर्नर्स में भी ऐसा लगता था कि आपका पैर कुछ प्लांटेड नहीं है. यू नो, इट जस्ट इंडेंट गेव मी some sort of a recess to hold on to the bike and sit on it properly while accelerating, even sometimes tucking in. ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है. दूसरा, माई वाइफ सिट्स एट द बैक, और वो जो सीट थी वो थोड़ा सा 2 mm या 8 mm के आसपास कुछ कम थी. तो उसमें क्या प्रॉब्लम था कि पैर का एंगल बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाता था, तो इससे थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है. नॉट ग्रेट, but it's still better than the original seat setup that it came in with. I might not upgrade it. We'll see. I'll keep you guys posted on the seat part. जब बाइक आई थी तब बाइक का कलर कुछ ऐसा था, मैं आपको बता देता हूँ. सिल्वर फेंडर्स, ठीक है, ब्लैक साइड पैनल्स, सिल्वर फेंडर अगेन एट द बैक, एंड क्रोम एंड ब्लैक फिनिश, एंड अदर थिंग्स आर क्रोम एंड ब्लैक अगेन. सो आई डोंट नो कौन भांग सप्लाई कर रहा था इंटरसेप्टर के लिए और कौन भांग सप्लाई कर रहा था रॉयल एनफील्ड में. जो फेंडर्स सिल्वर थे और बाकी सब कुछ ब्लैक और क्रोम फिनिश में था. इवन अगर आप यहाँ देखें तो ये एक अलग तरीके का सिल्वर था. तो मुझे पता नहीं है किस तरह की कलर स्कीम है. मैं आज तक टायर्स पेंट कराने के लिए सोचता रहता हूँ, वो टायर्स ये रिम्स पेंट कराने की सोचता रहता हूँ, और ये रिम्स भी आई डोंट नो व्हाई आरंट दे ब्लैक. वेयर एज ऐसा नहीं है दैट दे डोंट नो कि कलर स्कीम क्या रखनी है. दे हैव अ वेरी हाई, द मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग 350 segment bike that they have is a black colored classic 350, which is all black from the engine to the tires to everything, and it sells like hotcakes, and they know it, not that they don't know it, but I don't know क्या चल रहा था इस टाइम पे. ये बाइक बनाने के टाइम पे they did not finish it. ये देखिए, ये सिल्वर इंडेंट्स हैं यहाँ पे. अब अगर आप पूरी बाइक ब्लैक और क्रोम में लॉन्च कर रहे हैं तो ये भी चीज़ें सॉर्ट कर देते ना, काला कर देते उसको. इट कुड हैव जस्ट गिवन इट दैट फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस विच वॉज लैकिंग व्हेन आई बॉट द बाइक इन 19. और 2021 में भी कलर पेंट ऐसा कुछ माशाल्लाह नहीं है. इंजन अभी भी क्रोम है और कई जगह पे शायद टायर भी सिल्वर है. बट येस, देव करेक्टेड द Mark II वर्जन विद ब्लैक फेंडर्स, विच आई एम काइंड ऑफ ओके विद नाउ. बट ऐसा तो है नहीं अब मैं जाके Mark II ख़रीद लूँगा, जो आई हैड टू रियली इम्प्रोवाइज ऑन व्हाट आई हैड. सो आई मेड देम ब्लैक विद 300 रुपीज़ विनाइल जॉब. कभी देखेंगे अगर ये विनाइल निकल गई या लगा कि बहुत मज़ा नहीं आ रहा है तो प्रॉब्ली इसको पेंट करा लेंगे. बट अभी के लिए दिस वर्क्स फाइन. आई थिंक वील हैव टू फाइंड द बेस्ट बैलेंस बिटवीन हाउ मच मनी टू बी स्पेंट
ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ बाइक। अभी 3 लाख रुपए की बाइक पे 3 लाख रुपए और स्पेंड करना वाजिब नहीं लगता है। बाकी हर किसी का अपना पैसा है, टू ईच टू हिज ओन। ये वाला प्रोडक्ट जाना से है। ये बैक रेस्ट और बैक प्लेट वेर यू कैन लेटर पुट अ टॉप बॉक्स एंड वॉट नॉट इज़ अ 1 यूनिट फ्रॉम जाना। आई थिंक 2300 के आसपास का था ये। I'll let you know the exact pricing, but इसका उपलक्ष्य एक ही है कि टूरिंग के टाइम पे we load stuff on this and then my wife can rest her back on the backrest. Although ये काफ़ी नीचे है, यूजुअली मैंने बाइक्स पे थोड़ा ऊपर लगाया है हर बार, बट टूरिंग करते समय देखते हैं कितना प्रॉब्लम रहता है। अभी तो बहुत ज़्यादा लंबे टूर्स हम इस पर कर नहीं पाए हैं क्योंकि 2020 और 21 थोड़ा सा सॉरोफुल ही निकला है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स। दिस इज़ अ गुड स्टर्डी प्रोडक्ट। पीछे बहुत कुछ माउंट करने की जगह रहती है, प्लस आप जब पूरा सेटअप लोड करेंगे तो दिस कम्स लाइक एन एडेड यूनिट ऑफ टाइंग थिंग्स एंड टाइंग कॉर्ड्स ऑन इट। एंड काफ़ी स्टर्डी प्रोडक्ट है। आई थिंक इसका पेंट इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज द शैसी पेंट दैट इज़ बिन देयर ऑन द बाइक एज वेल। जाना के सैडल स्टेज, जाना मुझे पैसे नहीं दे रहा है बट अपना वर्डिक्ट दे रहा हूँ इस पर। जाना के सैडल स्टेज वर्क बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ एन एंगुलर साइलेंसर, जहाँ पे जब आप सैडल बैग्स डालते हैं तो वो थोड़े बाहर की तरफ रहते हैं और ये दिस बिकम्स लाइक अ होल्डिंग पॉइंट एंड इट्स क्वाइट स्टर्डी। मैं तो अब इसको यूज़ करता हूँ बाइक को स्टैंड पे चढ़ाने के लिए भी। तो यूजुअली व्हेन आई पुट द बाइक ऑन स्टैंड इट्स थ्रू दिस एंड इट स्टेज क्वाइट स्टर्डी। 2-3 बार जब इस पे लोड आया भी है तो ये मूव नहीं करता है। काफ़ी अच्छा यूनिट है। अगर आप टूरिंग करते हैं तो एसेंशियल पार्ट रहेगा, बट अगर आप टूरिंग नहीं करते हैं तो यूजुअली बाइक की कोई एस्थेटिक यूसेज नहीं देता है। सिर्फ एक मॉड है जो लोडिंग कैपेसिटी आपको बढ़ा देगा इफ़ यू आर यूजिंग सैडल बैग्स, आई एम सॉरी, combined with this connecting rod here and this back plate, it can rest about 3 big bags, 2 saddle bags and 1 big bag at the back. ये माउंट मैंने GoPro के लगा रखा है, कभी कभार यूज़ करता हूँ तो वहीं रह गया अब। बट हाँ, सैडल स्टेज आर इम्पॉर्टेंट अगर आप लगेज कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं। वी हैव ट्राइड इट ऑन अबाउट 300-400 किलोमीटर राइड एंड यहाँ पे पैर काफ़ी अच्छी तरीके से टिक जाता है। अगर आप देखो तो हील भी नीचे नहीं जाती है। कभी कभी अगर आप ऐसे पार्क करें तो हील इसमें अटक जाती है, विच इज़ स्लाइटली कंफर्टेबल ऑन लॉन्ग राइड्स। सो यस, एक बार फिर जाना मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है, बट हाँ अच्छा प्रोडक्ट है, डालना। साइड व्यू मिरर्स बाइक के एक एस्थेटिक पार्ट होते हैं एंड आई ऑल्सो फील दैट इसका लुक बाइक का लुक इन्हांस या डेप्रिशिएट कर देता है विद अ मैटर ऑफ just a part, and in this case I feel the same. So the bike came installed with those ugly similar mirrors that they've been using since 80s, which are mounted here and they come till here. So problem with those mirrors is that if you're on high speed you will never be able to see from it. ये क्लासिक 350-500 वाला इशू नहीं था कि वो वाइब्रेट करते हैं, बट मुझे लगता था कि जब आप हाई स्पीड पे होते हो तो आप थोड़ा सा नीचे होना चाहते हो तो वो वहाँ नहीं दिखते थे। जब आप ऊपर होते हो तो आपको बार बार एडजस्टमेंट करना पड़ता है बिकॉज साइड में नहीं दिखता है। दिस ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू सी, I have a clear view outside my shoulder and these are pretty big mirrors. I can see everything from it. And tuck-in position में भी they give you a very nice view of the back. All in all, मेरे को काफ़ी comfortable लगते हैं bar end mirrors, especially these big ones, not those small ones which are available on Amazon for 500 rupees. ये वाले Halcyon 830 की कॉपी हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई भी थी। I'll post the description of this, I mean the link of this video in the description box.
You guys can have a look if you would like to order. But I kind of like these mirrors. They're big and they give me a nice view of the back too. Plus वो कैफे रेसर वाली फील थोड़ी सी मेंटेन कर लेते हैं. Although high handles just kill it, but I kind of like the high handle. तो ये था हमारा ऑल मॉड्स का वीडियो, जिसमें सो फार जितने भी मॉड्स हमने लगवाए हैं वो हमने कवर कर लिए हैं. और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ मॉडिफिकेशंस इसमें कराऊंगा. यू गाइस वांना आस्क समथिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक मॉड्स, या कोई मॉड्स जो मैंने नहीं कराए हैं उनके बारे में अगर आपको पूछना हो, तो आई हैव अ perfect view of why I haven't gone for those mods, especially the performance mods. So do let me know in the comments what you feel about it, and we'll see how to take it forward. Until then, and until the next video, this is Couple of Rides signing off.